So now once again I'm introducing myself. My name is Ahmadullah, and basically I'm from Odisha, and I completed my BTech and MTech from JNTU University, Hyderabad. Okay, now I'm currently working as a PEB design engineer. Okay, first of all, I will give a brief introduction about PEB. So, okay, what is the full form of PEB? Pre-engineering buildings. Pre-engineered building. Okay, thank you. So let me share my screen. So can you see my screen, guys? Please confirm. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So what is PEB? Pre-engineered building. Okay. So first of all, we have contents. Please let me check the contents. We have concepts about the PEB and the history, the applications, the advantages. Okay. And the scope of PEB, what is the market of PEB in India, need of study, job opportunities. Okay. And what are the components of the PEB? So we have basic terms and abbreviations. I will explain you. And we have a structural system of PEB. So we have a standard structural system. I will explain in the detail in the design stage. But for now, just introduction. I will give the quick, understanding of the structural system and the other structural system, and we have secondary structural system, we have mezzanine floor system. Okay, and then what are the procedure of designing the PEB. We have the quick introduction in the PPT here, but later on I will explain in the detail. Okay. So first of all, we have reading of architectural drawings, codes and standards of the designing the PEB structures, and we have design of cold form sections, analysis of mainframe, design of mainframes, and design of connections. Okay, and after that we have quick understanding of erection procedure. Okay, we have understanding the engineering documents, preparation of erection of the framings, okay, sheeting and trimmings. Then we have conclusion. Okay, so introduction to PEB, the concepts. What is PEB? Yes, please. Sir, I have one doubt, sir. Whatever, sir, structural detailing of PEB, sir? What is the name, please? My name is Mohammad Naushad, sir. Sir, structural detailing के बारे में पूछ रहा हूँ जी. Naushad, can you please ask the question after completing the presentation? It will be better. Okay, sorry, sir. Okay, now everyone please write your dots, and after the completion of the PPT, you please ask me. Okay. Okay, are you agree? Please. Okay. Can you continue? Yes, sir. Yes, sir. Yes, please. So what is PEB? Pre-engineered building are the buildings which are engineered at office and factory and assembled at sites. Okay. So pre-engineered building क्या है basically? तो pre-engineered building एक steel structure है. So इसको जो है कि हम लोग ऑफिस में डिजाइन करते हैं और प्लांट में इसका फैब्रिकेशन होता है और साइट में इसका एग्जीक्यूशन होता है सिंपली. सो प्री इंजीनियर बिल्डिंग बोले तो पहले से ही हम लोग इसको पूरा डिजाइन करके फैब्रिकेट करके एवरीथिंग रेडी रखते हैं. उसके बाद वी सेंड इट टू द साइट एंड जस्ट इन द साइट वी इरेक्ट इट डायरेक्टली देयर बाय द बोल्टेड कनेक्शन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोल्टेड कनेक्शन. सो साइट में सिर्फ बोल्टेड कनेक्शन के जरिए हम लोग इसको इरेक्ट करते हैं. So this is called the PEB. Usually PEBs are steel structures, built up sections. Built up section क्या है? Built up section होता है एक hot roll section होता है.
तो बिल्ट अप सेक्शन क्या है, वर्जिन प्लेट्स रहते हैं, प्लेट्स को वेल्ड करके हम लोग कोई भी सेक्शन बनाते हैं, सपोज आई सेक्शन हो गया, ठीक है ना, तो उसको बिल्ट अप सेक्शंस बोलते हैं. So built-up sections are designed at the office and fabricated at the factory to exact size. So whatever design we provide, as per that, जो है कि factory में fabricate होता है and transported to the site and assembled at the site with bolted connections. Okay, this type of structural concept is generally used to build the industrial buildings, metro station, warehouses, etc. Okay. So pre-engineered building are a concept for buildings that have superior conventional fabrication, high structural strength and economical design. So pre-engineered building में generally क्या है, we have high strength of material which is 345 Ill strength, and we have economical design economically in the PEB. So that's why demand is very for PEB in the market. Okay, it lowers the strain on the foundation. So it lowers the foundation strain on the foundation. How? Because we have pinned connection at support. As you know that if we have pinned connection, there is no moment at the support, right? So if there is no moment, so our foundation will be very lighter. Okay. So RCC work will be very RCC work जो है कि cost बहुत कम हो जाता, lowers the prices of civil construction. Okay, this is the PEB. So PEB can be up to 15 to 20% lighter than the conventional steel construction. So it is 15 to 20% lighter. किससे? Conventional steel structures. So we have already the conventional steel structures, but why we are using the PEB? PEB हम लोग क्यों use कर रहे हैं? Because we can save up to 15 to 20% of steel from the conventional steel building. Okay, so what was the history? So history was so steel was very expensive item in USA. So nowadays it is also expensive, but at that time also it was expensive. So the concept of PEB originated from here. Okay, so the idea was that the section should be provided as per bending moment diagram. So whatever the bending moment diagram, as per that we will provide the section. So as you can see here, so see this is the rigid frame, right? So we have the bending moment diagram, as you see. So what we can do for the conventional procedure, we give the hot roll section. So there was no scope of tapering of this hot roll section, as you know. But in the PEB, in built-up section, we can taper our section as per the design, and where the bending moment is high, there we can provide the more section. Where bending moment is less, we can reduce the steel there. So this is the concept over here. As you can see over here, as per the correct bending moment, we are providing, like this is the shaded portion, as you can see. So we can reduce this much of steel. Okay, now you can see here in the red. So like as per the bending moment, it is gradually it is higher, right? So gradually it is decreasing here. So here we have less bending moments. So after that it is gradually increasing. So as per this one, we are providing our section, like it is high, so we are providing more depth over here, and it is low, so we are reducing. Only for the shear we are providing the depth here, and after that we are increasing our depth here. Okay, so this is the concept. So what are the applications of PEB? So what are the fields in which we can utilize our PEB structures? So obviously the industrial buildings are there. Okay, in the industrial buildings, so we have factories, we have workshops, we have warehouses, cold storage, car parking shed, bulk product storage. Okay, so in the commercial also we have showrooms, distribution centers, supermarkets, offices. So these are also the PEB structures. Nowadays we are using
mostly for the showrooms, for the supermarkets. If you see, if you live in Hyderabad, the DMart, you can see the PEB structures, the showrooms, the Toyota showrooms, and most of the showrooms are built up of PEB, right? For the institution, for the schools, exhibition halls, hospitals, theater, auditorium, sport hall. So for all that, we can use the PEB structures. Okay. So recreational. So gymnasiums are there, swimming pools are there, indoor tennis courts, indoor stadiums are there. Okay. So we can use aviation and military for aircrafts hangar, the span is like 90 meter, 100 meters, or a clear span without any column, without any intermediate columns, right? So we can use the PEB structures for that. So administration building, residential barracks, support facilities, we can provide the PEB. And for the agricultural, poultry buildings are there, dairy farms are there, greenhouses are there, grain storages are there. So animal confinements are there. So I will show the pictures of all that, and we have recreational, I explained this one. So you can see here, this is the school. So how aesthetic this is, we can build it from the PEB, right? So this is the warehouse. As you can see here, we have like eve height of like 15 to 20 meter we can provide for the warehouses, and the spans of like 40 meter, 50 meters, 100 meters are there. Okay. So this is the parking shed. So in the parking shed, this is a PEB, like how aesthetic this is looking, this is very beautiful cantilever like parking shed. Showroom, as you can see here, Toyota showroom. This is, here we can use the fascia to cover our steel structures, and so this is the showroom. Okay, DMart, as you can see, DMart. So we can use the PEB structure. So this is like hospital building. So this is also very beautiful. So whatever the shape we want, we can like use our PEB structures for that. So this is the aircraft hangars. So the clear span is like up to 90 meter, 100 meters are there. Okay. So this is in the indoor stadiums are there. Okay. Let me check. Someone want to join? Okay. So this is the petrol pump, as you can see. This is also of PEB. Okay, this is the poultry farms. Okay, so these are the pictures. Now what, coming to the advantages of the PEB. What are the advantages? Why we use PEB? Why not conventional steel building? So the first one is reduce construction time. ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन टाइम आपको मालूम होगा कि कंस्ट्रक्शन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन टाइम जितना ज्यादा होगा उतना लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा आपका. मटेरियल तो उतना ही रहेगा बट लेबर कॉस्ट. सो टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट सो वी हैव लेबर. सो लेबर कॉस्ट जो है कि आजकल मटेरियल कॉस्ट से ज्यादा क्या है, लेबर कॉस्ट है. ठीक है ना. उसके बाद फिर क्या है, तो कंस्ट्रक्शन टाइम कम होगा तो क्या होगा, लेबर कॉस्ट कम होगा. लेबर कॉस्ट कम होगा, देन वी कैन the project will be in the our budgets, right? Also it reduces the design time. So we have advantages in the design. So we can use the software to design the PEB structures. Basically we use the StatPro software to design. It is very, very good software to design. Okay, so we have like एक procedure के through हम जो है कि design करेंगे. So it reduces the design cost, lower the cost. So obviously if the construction time is less, then the lower the cost of the project will be less, obviously, right? And now we have lighter foundation, as I explained you that why we have lighter foundation, because mostly we have the pinned connection at the supports, right? And we have faster erection in the PEB. Like if the erection is faster, labor cost also, less erection. Okay.
our project cost. So flexibility of expansion. So flexibility of expansion क्या है कर रहे हैं और आप पास 5 साल आपको उस करना है बिल्डिंग. Your voice is breaking, sir. So can expand in the like this, okay? Expansion consider करके डिजाइन कर लेंगे, उसके बाद फ्यूचर में उसको एक्सपैंड कर सकते हैं. Okay, we have large clear spans. So large clear span का मतलब we can go, as I already told you that we can go up to like 90 meters, 100 meters. I'm not talking about feet, it is meter. So we can go up to that span. So efficient roof and wall systems. How it is energy efficient means we can provide the skylights like our panel. If we use the translation material for the roof panel, so that energy efficient, we can make it energy efficient and architectural versatility. So whatever the architectural they are designing the building, so that we can provide our structure. Okay, so aesthetically, architecturally it is sound. We can give any shape and size in the PEB structures. Okay, and single source accessibility. This is very important. Like if someone wants to build their PEB structures, अगर वो कंपनी में जा रहा है और स्ट्रक्चर्स भी डिजाइन करके देंगे, वो आपको शीटिंग्स भी देंगे, वो आपको ड्रेनेज सिस्टम दे देंगे. They will provide, like you don't have to go there. Okay, so there are some advantages because everything have disadvantages. So we have few, like susceptible to corrosion. It is, as you know, the steel is susceptible to corrosion, but we can reduce this. We can if you maintain it very well, like we can prevent from the corrosion. Okay. Yes. And we have low thermal resistivity. As you know, the iron is of low thermal resistivity. So and it is low fire resistance, as you know, because RCC में क्या है, हम 10 घंटे 12 घंटे जो है कि अगर फायर आ भी गया तो 10 घंटे 12 घंटे तक बिल्डिंग कोलैप्स तो नहीं होता, वो रेजिस्ट करता. बट फॉर द पीवी स्ट्रक्चर्स इन 2 घंटे 3 घंटे में क्या हो जाता, पूरा पीवी पूरा स्टील जो है कि कोलैप्स हो जाता, पिघल जाता. Okay, so these are the advantages of the PEB, but we can use techniques to reduce all this. Okay, now coming to the scope of the PEB, this is very important for you guys because you are trying to come in the PEB industries, right? So what are the scopes in the PEB? What are the, as you can see here, so in 2018, 19, 20. So from 20, it is gradually increasing, like you can see over here. So gradually it is increasing. So the market size in USD, okay, like $1 billion. You can see over here up to 2032, it will be like $50.72 billion market will be there in India. Okay, so there are so many scopes in PEB. So what the PEB market by application in India, as you can see here, for the residential, from this much of structures we are increasing gradually like this one, and in the commercial we are increasing like as you can see here, and for institution also it is increasing. So this is the future of our India for the structures. So what is the need of study of PEB in India? So we have good market growth in India, new age technologies for quality and speedy constructions are there. So need of awareness among consultants and architects and customers. So customers और जो है कि architects में अभी जो है कि awareness आ रहा बहुत सा.
So projects are coming PEB sections. Okay. So PEB. Okay. So PEB has a favorable alternative construction methodology today. Okay. So in most of the cases, like warehouses, showrooms, all in these sections we are using PEB. So Indian PEB market is now experiencing a demand shift to new applications due to infrastructure development. Like airports, multi-story buildings, stadium, metro station. You can see in all the section we are using the PEB. Why? Because it is very, cost effective, low construction time, and very economical it is. Okay. So if you see the metro station of Hyderabad, it is completely of PEB structures, right? So the country will see increased economic growth, and the removal of barriers to the foreign investment will super demand for construction over the coming few years. Okay. So job responsibilities, job opportunities. So good opportunities for design and detailing departments. So we have like design departments, we have detailing. In detailing, we have TECLA, we have like draftsmen are also required for approval drawings, for proposal drawing. So there are so many job opportunities are there in the PEB structure. PEB is right. So job opportunities in PEB are growing like IT industry. See, in the job portal, if you search the PEB designers, PEB designers, detailers, so you will get so many job opportunities, right? So thousands of job opportunities are there in job portals like LinkedIn, Naukri.com, etc. So we have good career growth. This is very important. So we have also the growth is very good, in this field. Okay. Now coming to the components of PEB. So we have like I will explain in the detail, and I will share one more PPT, one more PDF to you. 1 minute, guys. I will share you. You please download both the documents, okay? And I have also 1 minute. You people please download this, okay? Okay. So coming to the components of PEB, like we have, list of this one, as you can see here. So first of all, we have concrete footing. This is of RCC. Okay.
So we have foundation. First of all, we have RCC footing. After that, in second number, we have anchor bolts, right? एंकर बोल्ट्स है. एंकर बोल्ट्स में क्या है? सर आपका डिस्प्ले ऑफ हो गया सर. Check. Is visible right now? No, no. One minute. सर दिख रहा है आपका डिस्प्ले तो. एक मिनट फिर से शेयर कर दे रहा हूं मैं. Can you see now? Is Yes, it sir. visible, right? Yes, sir. Yes. Okay, my voice is audible, right? Yes. Yes, sir. Okay, thank you very much. Now, coming to the components, this is very important. Like, if you are a designer, you are a detailer, you must know each and every components of the PEB building. Okay. So first of all, I'm starting from the very basic like footing. We have first of all we have footing है हमारे पास. फिर एंकर बोल्ट्स किसको बोलते हैं? अपने स्टील स्ट्रक्चर्स को आरसीसी में कनेक्ट करने के लिए हमको एंकर बोल्ट्स की रिक्वायरमेंट है. ठीक है ना. हमारा फुटिंग है, फुटिंग के ऊपर पेडिस्टल आएगा जिसको कॉलम बोलते हैं, उसको पेडिस्टल बोलते हैं अपन पीईबी में. सो पीईबी में पेडिस्टल में एंकर बोल्ट्स हमारे आएंगे. उसके ऊपर हमारा बेस प्लेट है. फिर वी हैव बेस प्लेट. सो through anchor bolts by base plate we can connect our steel buildings to RCC. Okay, so we have end wall girts. So what is girts? Okay, so I will show you the girts over here. So you can see the clear here, right? So this is called as the girt, right? This is called the girt. So girts क्या है? So this is girt. Column to column jointer. This is called girts. No. Column to column joint होता है, but what is the purpose of the girt? Girts का purpose ये है कि हमको ये हमारा side wall से, right? Side wall में अभी हम correct. For connecting the sheeting to our building, we use the girts for the walls and Vertical purling. sheet. Okay. For purling for the roof, right? Okay. Now coming to the portal bracing. So bracing, So this is our structure, right? I will show you here. So this is our structure. So this is the rigid frame. So this is the lateral direction. This is called as the lateral direction. So in the lateral direction, the structure is capable of resisting the lateral loads. Okay. Lateral load को resist करने के लिए हमारा ये frame section ही काफी है in the lateral direction. But in the longitudinal direction, so this is called the longitudinal direction. This is lateral direction. This is called the longitudinal direction. So in the longitudinal direction, so we don't have the section. We have web depth. Like web किसको बोलते हैं? I will explain you. So in the longitudinal direction, so like this is the I section, right? This is the I section. Generally we use I section in our structure. So अगर लोड ऐसा आ रहा, so if the load is coming in this direction, so this is the depth of the structure, this depth of our column or beam column. So depth कितना है? Suppose 500 है. Okay, so this depth is capable of resisting the load by the framing action. This it will create the framing action to resist the load. But in the longitudinal direction, in this direction, we have only this depth of the web, which is like 5 mm, 6 mm, 8 mm. So it is not capable of resisting the load in this direction. So for the longitudinal direction, what we provide? We provide the bracing to resist the longitudinal loads. Okay, clear हो गया? Okay. Coming to the main Yes, frame. sir. Okay. Coming to the main frame straight columns. So this is called the main frame straight column. This is the main frame
and we have like this column is called as the mainframe straight column. Okay, it might somewhere it will be straight, somewhere it is tapered. As you can see here, it is straight now. Okay, this is called as the mainframe straight columns. Okay, and we have wall bracing. Wall bracing, I explained you that wall bracing क्या है. So this is the wall bracing. So ऐसा bracing हम दे रहे, क्रॉस ब्रेसिंग रॉड का रहता, केबल का रहता, ट्यूब्स के रहते, एंगल्स के रहते इसको. So this is called as the bracing. So wall bracing. Okay, so we have framed openings. So windows are there, louvers are there. Louvers in सर the वर्टिकल और डॉट्स बाद में, लास्ट में. ठीक है, लास्ट में आप डॉट पूछो. ओके, I will explain, I will continue after the session. You please continue, continue your dots. Okay, so we have framed openings. Like this is called as the frame. Like this is the end wall. So somewhere we have opening here for the windows and for anything it might come. So this is called as the window or louvers. Louvers industrial, like in the PEB building, the windows we can say it the louvers. I will explain the later on. Say this one like lower is there. So for the ventilation purpose we use that. Okay, we have end wall columns. So end wall, what is end wall? What is, I will explain you. See, this is like one way frame is there. Okay, let me clear this one. अभी क्या है, ये फ्रेम जो है कि अभी एंड में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंड वॉल बोलेंगे. ठीक है ना, ये दोनों एंड वॉल ही है. अभी ये क्या है हमारा, ये साइड वॉल्स है. ठीक है ना, ये साइड वॉल्स है. अभी आप देखेंगे यहाँ पे, ये देख लेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स. सो दिस इज कॉल्ड द एंड वॉल्स. सो दिस इज कॉल्ड द साइड वॉल्स. लाइक फ्रंट साइड वॉल, इफ यू आर from front, it is front side wall. This is called as the back side wall. ठीक है ना, ये front side wall, this is back side wall, right? One minute. Back side wall. सो बैक साइड वॉल हो गया, ये हमारा एंड वॉल्स हो गया. तो इधर से हम देख रहे हैं तो ये हमारा लेफ्ट एंड वॉल्स हो जाएगा. ओके, उधर से हम देख रहे हैं तो हमारा राइट एंड वॉल्स वो हो जाएगा. ओके, ये हमारा एंड वॉल्स है. सो वी हैव एंड वॉल कॉलम. सो दिस इज एंड वॉल. सो फॉर द एंड वॉल्स वी यूज कॉलम्स हियर, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज द एंड वॉल कॉलम. सो वी कैन से इट विंड कॉलम, विंड कॉलम. ओके, and we have ओके. सो उसके बाद क्या है हमारा, रूफ ब्रेसिंग है. रूफ ब्रेसिंग, रूफ ब्रेसिंग किसको बोलेंगे अब हमारा, ये देखो, ये हमारे वॉल ब्रेसिंग्स हो गए. सिमिलरली वी प्रोवाइड द ब्रेसिंग एट रूफ. रूफ में भी हम लोग ब्रेसिंग देते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, रूफ ब्रेसिंग हो गया. ओके, सो रूफ ब्रेसिंग. नाउ कमिंग टू द मेन फ्रेम राफ्टर. सो हम जो है कि जनरली क्या करते हैं, इसको राफ्टर बोलते हैं हमारे पीईबी लैंग्वेज में. दिस इज कॉल्ड एज द राफ्टर एंड दिस इज कॉल्ड द कॉलम. ओके, सो वेरी सिंपल. सो ये टर्मिनोलॉजी आपको कंप्लीटली जो है कि याद करके रखना है. ठीक है, वी हैव जैक बीम. जैक बीम आप किसको बोलेंगे, जैक बीम क्या है, दो फ्रेम्स है. सपोज दो फ्रेम्स है, ये एक फ्रेम है, ये एक फ्रेम है. ठीक है ना, अभी हम यहाँ पे जो है कि अगर एक फ्रेम में इंटरमीडिएट कॉलम हम नहीं दे रहे यहाँ पे सपोज, तो क्या होता है, ये राफ्टर किससे सपोर्ट होगा, तो एक यहाँ से ये राफ्टर से ये राफ्टर में एक बीम रन करते हैं हम. ठीक है ना, वो बीम के ऊपर फिर राफ्टर को रेस्ट करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जैक बीम बोलते हैं. ठीक है ना, इसका डिजाइन कैसा करते हैं,
ठीक है ना, इसके क्या क्या कनेक्शंस कैसे होते हैं ये बाद में एक्सप्लेन करेंगे. ओके. Now coming to the mainframe tapered column, as I told you, we have straight column, we have tapered column. So this is tapered column. इसको tapered हम क्यों कर रहे हैं और straight क्यों रखते हैं? तो basically our support is you know pin. So pin support है तो moment कम है. Moment कम है तो क्या हुआ जो है कि हम depth यहाँ पे कम कर सकते. So यहाँ पे depth कम करके फिर यहाँ पे moment रहता हमारा, ठीक है ना. moment यहाँ पे ज्यादा है तो इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पे डेप्थ ज्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है ना. इसको बोलते हैं मेन कॉलम, मेन फ्रेम टैपर्ड कॉलम. ओके, मेन फ्रेम टैपर्ड कॉलम. वी हैव कैंटिलीवर फेशिया फ्रेम. अभी फेशिया किसको बोलते हैं? फेशिया एज आई एक्सप्लेन यू दैट, अभी आप देखेंगे यहाँ पे सपोज दिस इज अ शोरूम. सो आवर स्ट्रक्चर इज लाइक गेबल, बट उसको क्या करें ऊपर से हम ऐसा कवर कर दिए तो एक फ्रेमिंग स्ट्रक्चर्स देके इसको फेशिया बोलते हैं. इससे हम को है कि कवर कर सकते हैं. सो एस्थेटिकली इट विल लुक गुड. ओके. वी हैव लीन टू फ्रेम. लीन टू फ्रेम किसको बोलते हैं? वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक फ्रेम है ये, लाइक दिस इज द मेन बिल्डिंग, राइट. दिस इज द मेन बिल्डिंग. सो मेन बिल्डिंग में अभी हम जो है कि एक और एडिशनल बिल्डिंग को ऐड कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज द लीन टू बिल्डिंग. सो मेन बिल्डिंग से जो भी बिल्डिंग कनेक्ट हो रहा है उसको हम लीन टू बिल्डिंग बोलते हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड द लीन टू बिल्डिंग. ओके, लीन टू बिल्डिंग. सो वी हैव क्रेन बीम. क्रेन बीम, क्रेन बीम किसको बोलते हैं? हमारे बिल्डिंग में क्रेन्स आते हैं, ठीक है ना. आपको क्रेन मालूम होगा. So this is the crane. So this is our building and we have crane, this one. So अभी यहाँ पे क्या है? क्रेन. हमारा क्रेन बीम किसको बोलेंगे? तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. अब क्रेन है ऐसा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में रन होगा, ठीक है ना. लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में रन होगा तो कि जिसके ऊपर रन होता है ना, ये हमारा मेन कॉलम है सपोज. इससे हम एक ब्रैकेट लेते हैं. ब्रैकेट लेके इसके ऊपर हम जो है कि ये बीम को रेस्ट करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज द क्रेन बीम, ठीक है ना. दिस इज कॉल्ड एज द क्रेन बीम. और इसको जो येलो कलर का है देखो, ये इसको क्या बोलेंगे हम? क्रेन ब्रिज है ये हमारा, ठीक है ना. क्रेन ब्रिज है, ठीक है ना. इसके साथ हुक्स लगे रहता है, ठीक है ना. इसमें जो भी आप जो है कि लिफ्ट करना चाह रहे हैं आपका मटेरियल, वो लिफ्ट कर सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज द क्रेन बीम. ओके. सो क्रेन कॉलम. So also this is the crane column. If it is a beam, this is the crane column. Okay. So EOT crane. So top running crane we have like this one. ठीक है ना. इसको बोलते हैं top running crane. Okay. crane है हमारा. Okay. We have roof purlin. अभी मैं एक्सप्लेन किया था आपको पर्लिन किसको बोलते हैं, गर्ड्स किसको बोलते हैं. सो गर्ड्स क्या है? बेसिकली वॉल में आते हैं. उसको गर्ड्स को हालांकि दो भी एक ही सेक्शंस रहते हैं, लाइक सो दिस इज द गर्ड्स, ठीक है ना. दो भी एक ही सेक्शंस रहते हैं, मतलब जेड सेक्शन का ये ऐसा जेड सेक्शन विथ लिप ऐसा रहता. तो वॉल में जो आता है उसको हम गर्ड्स बोलेंगे. जो हमारा रूफ में आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? पर्लिन बोलेंगे. ओके. दिस इज द रूफ पर्लिन. वी हैव फ्लैंज ब्रेसेस. सो वी हैव फ्लैंज ब्रेस. फ्लैंज ब्रेस किसको बोलते हैं? अभी आप देखेंगे. सो दिस इज द आवर जेड सेक्शन. दिस इज आवर सी सेक्शन. वी कैन यूज जेड सेक्शन एज वेल, सी सेक्शन एज वेल. ओके. फ्लैंज ब्रेस. फ्लैंज ब्रेस किसको बोलते हैं? ये देखो हमारा, ये सपोज ये हमारा राफ्टर जा रहा है, ठीक है ना. अब राफ्टर के ऊपर हमारा क्या है? पर्लिन है. पर्लिन है, ठीक है. पर्लिन से जो है कि हम एक सेक्शन इसको कनेक्ट करते हैं, पर्लिन को राफ्टर से कनेक्ट करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज द फ्लैंज ब्रेस. दिस ये जो है कि हमारा जनरली एंगल सेक्शन का मोस्टली रहता है, ठीक है ना. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फ्लैंज ब्रेस, दैट आई विल एक्सप्लेन. ओके. अभी क्या है? ये हमारा बीम है. ओके. दिस इज आवर राफ्टर बीम. सो दिस इज आवर पर्लिन. तो इसको फ्लैंज ब्रेस से ऐसा हम कनेक्ट करते हैं. क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि जब हमारा लोड ऊपर से लगेगा
ऐसा हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, सपोज हमारा विंड लोड आ रहा है या डेड लोड आ रहा, तो इसमें राफ्टर में क्या होता है, लैटरल टॉर्शनल बकलिंग आता है। लैटरल टॉर्शनल बकलिंग का मतलब क्या है, ये जो है कि ऐसा बेंड हो जाता, इसको लोड आने के ऊपर, आई विल शेयर द वीडियो एज वेल इन द ग्रुप, यू कैन सी। सो इस क्या होता है, ये ऐसा रोटेट, थोड़ा टॉर्जन होता है, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए ये फ्लैंज ब्रेस हम देंगे, ठीक है ना। वो क्या करेगा जो है कि हमारा ये सेक्शन को पकड़ के रखेगा, ताकि ये जो है कि बकल ना हो सके, लैटरल टॉर्जन ना हो सके इसमें, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज द फ्लैंज ब्रेस। So I will explain the deep as well. Okay. So this is called the flange brace. And we have sag rod. Sag rod किसको बोलते हैं? अब sag rod क्या है बोले तो, अभी हमारा पर्लिन है सपोज, ठीक है ना। पर्लिन जो है कि ऐसा जा रहा है, ये आप अगर क्लियर है सैग रॉड, तो ये हमारा पर्लिन, ये राफ्टर है, ऐसा ये डायरेक्शन में पर्लिन जा रहे हैं। तो पर्लिन को जो है कि पर्लिन टू पर्लिन जो है कि एक रॉड हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि उसको जो है कि रेजिस्ट, जो है कि उसको रेस्ट्रेन दे, सपोर्ट्स दे, ठीक है ना, ठीक है ना। अनब्रेस लेंथ इसका, ये सपोज दिस इज द लेंथ, तो ये आपको बीच में अनब्रेस कर रहा है, इसको ब्रेसिंग दे रहा है पर्लिन को इन द सर्टेन डिस्टेंस, तो दिस इज कॉल्ड एज द सैग रॉड। ओके, we can I will explain the later in the design also. Now eave strut, what is eave strut? So basically ये हमारा फ्रेम है, सो ये पर्लिन है हमारा, राइट। सो पर्लिन जो एंड पे पर्लिन आ रहा, हमारा एंड पे जो पर्लिन आ रहा, इसको हम टर्मिनोलॉजी में पीईबी में क्या बोलते हैं, ईव स्ट्रट, क्योंकि ये ईव पे आ रहा है। दिस लोकेशन इज कॉल्ड एज द ईव लोकेशन। सो ये लोकेशन पे जो आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ईव स्ट्रट, ठीक है ना। इस पे क्योंकि स्ट्रट फोर्स एक्ट होता, वो हम डिजाइन में हम जो है कि डीप में समझेंगे, व्हाट इज द स्ट्रट फोर्स इन द पर्लिन। ओके, this is called as the eave strut. Okay, we have side wall girts, as explained you, side wall girts, ये side wall girts है पूरे जा रहे, ठीक है ना। ये end wall है तो इसको end wall girts बोलेंगे, ये side wall है तो इसको side wall girts बोलेंगे। Okay, we have flush fascia frame. Okay, flush fascia frame means this is called as the this is fascia, but it is not flush, इट इज एक्सटेंडेड, क्योंकि थोड़ा सा इसको फ्रेम से एक्सटेंड कर रहे हैं हम, एक्सटेंड करके फिर ये हम ये दे रहे, स्टफ दे रहे, तो इसको एक्सटेंडेड बोलेंगे। तो फ्लश कौन सा है हमारा, फ्लश हमारा कैसा रहेगा बोले तो, सपोज दिस इज द कॉलम, एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ये हमारा रिजिड फ्रेम है, ये रिजिड फ्रेम में ही हम क्या करेंगे, एक मेंबर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है कि इसको कवर कर देगा, तो दिस इज कॉल्ड एज द फ्लश फेशिया। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द फ्लश फेशिया, ठीक है ना। इसमें एक्सप्लेन रहेगा, आप देख सकते हो, ठीक है। सो वी हैव कैज लेडर। कैज लेडर क्या है, ये सपोज हमारा मल्टी लेवल बिल्डिंग है, ठीक है ना। अभी इसमें ऊपर जाना है तो आप कैज लेडर से भी जा सकते हैं। वी हैव स्टेयरकेस एज वेल, राइट, वी हैव स्टेयरकेस एज वेल, बट वी कैन यूज द कैज लेडर ऑल्सो, ठीक है ना। तो मेंटेनेंस पर्पस में, कुछ पर्पस में ये हमारे को यूज होता है कैज लेडर। ओके, सो वी हैव डेक पैनल विथ स्टील मेश। डेक पैनल किसको बोलते हैं, डेक पैनल क्या है, पैनल मतलब शीट, ठीक है ना। पैनल किसको बोलते हैं, ये हमारा सपोज मल्टी लेवल मेजनाइन है, इसको मेजनाइन बिल्डिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, स्लैब भी आता है, आरसीसी का स्लैब भी आ रहा है। तो आरसीसी का स्लैब जो है कि हम लोग, अब जनरली हम आरसीसी बिल्डिंग में कैसा करते हैं, एक जो है कि हम शटरिंग देते हैं, ठीक है ना। शटरिंग के ऊपर फिर हम मेश डालते हैं, अपना स्लैब का जो रीइंफोर्समेंट आ रहा है वो डालते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर स्लैब को कास्ट करते हैं। बट इन द पीईबी फील्ड वी यूज द डेक पैनल, एक शीट रहता है, उसको एज ए परमानेंट शटरिंग, एज ए परमानेंट शटरिंग वी यूज। Like if it is here, I'll explain. I will show you. A minute.
So as you can see here, like this one. 1 minute. So हाँ, here clear picture is there. So देखो ये हमारा ये शीट दिख रहा है आपको, ये शीट है, ठीक है ना, ये शीट है, उसके ऊपर ये रेनफोर्समेंट आ गया, रेनफोर्समेंट के ऊपर हम जो है कि फिर स्लैब कास्ट कर देते हैं. So we use the deck panel as a permanent shuttering, like we don't remove it after the casting of the slab. Generally in RCC में कैसा करते हैं हम लोग शटरिंग को निकाल देते हैं, ठीक है ना, शटरिंग को निकाल देते हैं. बट इन द PEB we use it as a permanent shuttering. Okay. So this is called as a deck panel with mesh. We have handrails generally. So if we have staircase handrails are there, and we have floor, then in the floor also we have handrails. Okay, we have handrails. If it is there, I will explain you. Okay, no problem. So handrails आपको मालूम है handrails किसके लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, handrails हो गया. We have staircase with checker plate, ठीक है ना, staircase with checker plate. ये हमारा staircase दिख रहा है आपको, ठीक है ना, staircase है. staircase में जनरली हम लोग क्या करते हैं, checkered plate यूज करते हैं. checkered plate किसको बोलते हैं, ठीक है ना, एक जो है कि स्लिप नहीं होता, जिसमें वो एक प्लेट रहता है जिसमें स्लिप कम होता है, ठीक है ना, वो यूज करते हैं एज ए फ्लोर, ठीक है ना, उसको चेकर्ड प्लेट बोलते हैं. जनरली आप बस में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा जस्ट में जो फ्लोरिंग रहता है वो चेकर्ड प्लेट का फ्लोरिंग रहता. ओके, वी हैव क्रेन ब्रैकेट्स. क्रेन ब्रैकेट्स में एक्सप्लेन किया था आपको. क्रेन ब्रैकेट्स क्या है, क्रेन में जो है कि जो क्रेन बीम को सपोर्ट देता, वो क्रेन. Here we can understand very easily. See, this is the main column, right? So we have main column, and from main column we have bracket. ये bracket है हमारा. Okay, ये bracket के ऊपर फिर ये हमारा बीम रेस्ट होगा, ठीक है ना. ये बीम के ऊपर जो है कि ये हमारा क्रेन ब्रिज है, उसके ऊपर रेल रहता, वो जो है कि हमारा क्रेन उसके ऊपर चलता. Okay, this is the this is not the complete components. We have so many. But in the PPT I explain you later on. I will give you the this this PDF you please download, and you can take from and read all the components from this one and this PDF. Okay, and we have like outer components. We have like roof panel. रूफ पैनल किसको बोलते हैं, रूफ पे जो स्टीटिंग आ रहा, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, रूफ पैनल बोलेंगे. वॉल पैनल हो गया. वॉल पैनल क्या है, वॉल में जो शीटिंग आ रहा है वो वॉल पैनल हो गया. वी हैव कैनोपी. लाइक कैनोपी किसको बोलते हैं, एक बिल्डिंग से जो है कि हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं अपने बिल्डिंग से फ्रेम को, ठीक है ना, थोड़े पोर्शन में कहीं पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैनोपी. यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ, एक मिनट. See here, you can see the clear picture of the canopy. So generally above the doors we provide the canopy, so water will not come inside the building. For that purposes we use the canopy. Okay, this is called the canopy. So we have roll-up doors. Roll-up doors are there, as you can see here. This is roll-up doors. आपको मालूम है, roll-up doors हो गया, डबल स्लाइड डोर्स हो गए. डबल स्लाइड डोर्स बोले तो ये डबल स्लाइड डोर्स है. यहाँ पे देखेंगे इधर से भी स्लाइड हो रहा है, उधर से भी स्लाइड हो रहा है. So this is called as the double sliding doors. Okay, and we have rake trim. Like अभी आपको एक्सप्लेन करना बोले तो ये हमारा रेक रहता, सो वहां पे हम ट्रिम करने के लिए शीटिंग यूज करते, तो उसको रेक ट्रिम हम जनरली बोलते हैं, ठीक है ना. सो वी हैव स्काईलाइट्स. एज यू कैन सी हियर इन सो यहाँ पे हमारा रेड पैनल्स कलर का पैनल है, बट यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, ट्रांसल्यूशन मटेरियल दे रहे, जो है कि विजिबल्स रहते, ठीक है ना, तो एनर्जी एफिशिएंट्स रहते, रोशनी अंदर भी जा सकता है, ठीक है ना, तो बिल्डिंग जो है कि हमारा पूरा एनर्जी एफिशिएंट्स रहते. ओके,
एंड वी हैव रिच वेंटिलेटर्स. रिच वेंटिलेटर किसको बोलते हैं? ये हमारा रिच है जनरली. आई विल एक्सप्लेन यू. रिच किसको बोलेंगे हम? ये हमारा ये हमारा फ्रेम है ना, ये जो इसका ये पॉइंट है सेंटर पे, या सेंटर पे हट के भी रह सकता, बट दो फ्रेम्स जो है कि दो साइड से आके कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिच लाइन. ठीक है ना, उसको हम रिच लाइन बोलेंगे. ओके, सो वी हैव रिच वेंटिलेटर. सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा सर, स्क्रीन डिस्प्ले ऑफ हो गया सर. दिख रहा है बस. दिख रहा है सर, दिख रहा है. आप कैसे देख रहे हैं? बस से 2 बार हो गया आपका. प्लीज थोड़ा ध्यान दें, डिस्टर्ब नहीं करें क्लास को. प्लीज कंटिन्यू अब्दुल्ला. थैंक यू सर, थैंक यू. सो रिच अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्मिनोलॉजी हम हर बार यूज करेंगे. रिच हमारा कहाँ पे है? रिच लाइन जो है कि हमारा सेंटर लाइन स्टील लाइन से कितने डिस्टेंस पे है, ये हम प्रोजेक्ट में यूज करेंगे. तो रिच लाइन इसको बोलते हैं. ठीक है ना. तो रिच पे जो वेंटिलेटर आता है, सो दिस इज कॉल्ड एज द रिच वेंटिलेटर्स. वेंटिलेशन पर्पस के लिए हम ये प्रोवाइड करते हैं रिच पे, तो इसको रिच वेंटिलेटर बोलते हैं. वी हैव पावर वेंटिलेटर्स लाइक दिस वन. वी हैव पावर वेंटिलेटर्स. ठीक है ना, टर्बो वेंट्स बोलते हैं इसको. ठीक है ना, ये भी हम यूज करते हैं फॉर एयर वेंटिलेशन. ओके, वी हैव ईव गटर. ईव गटर किसको बोलेंगे? ईव में जो आएगा. ठीक है ना, अभी मैं आपको उसका क्लियर पिक्चर कहीं पे है तो बताता हूँ. नहीं है. सो फिर से आ गया. सो जो ईव में हम गटर यूज करते, ठीक है ना, ड्रेनेज पर्पस के लिए हम क्या करेंगे? ड्रेनेज पर्पस के लिए हम ईव पे. अभी ईव कहाँ पे है? ईव लोकेशन किसको बोलते हैं आपको मालूम है? यहाँ पे देख लेंगे. ठीक है ना, ये हमारा फ्रेम है. तो यहाँ पे हमारा ये लोकेशन जो है एज पे, इसको हम क्या बोलते हैं? ईव लोकेशन बोलते हैं. तो ईव पे एक गटर आता है, जो वाटर यहाँ से ड्रेन होके आएगा, यहाँ पे हम गटर देंगे, उसको ईव गटर बोलते हैं. वो ईव गटर के साथ में एक डाउन स्पोर्ट रहता, एक डाउन टेक पाइप है. पाइप जो है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे ड्रेनेज सिस्टम रहता, वो इसको वाटर को ड्रेन करके ड्रेनेज में लेके जाता. तो यहाँ पे गटर जो देते हैं उसको हम ईव गटर बोलते हैं. ओके, सो वी हैव लोवर्स. एज एक्सप्लेन्ड यू, लोवर्स बोले तो एक विंडो है सपोज. ठीक है ना, इंडस्ट्रियल लोवर्स भी रहता, ये लोवर्स है, जस्ट विंडो फॉर एयर वेंटिलेशन. ओके, and we have masonry trip, we have window, we have also windows. Okay, look, so this is coming in the block wall. Okay, we have certain height, up to certain height we have block wall, then above we have sheeting. ठीक है ना, कुछ height तक block walls रहते हैं कभी कभी, और उसके ऊपर sheeting हम देते हैं जनरली. ओके, वी हैव डाउन स्पॉट. तो जो हमारा ये ईव, यहाँ पे ईव गटर आ जाएगा. ईव गटर के साथ में एक डाउन टेक पाइप रहता, तो इसको डाउन स्पॉट बोलते हैं. ठीक है, जो वाटर को कैरी करके ड्रेनेज में लेके जाता है. जो वी हैव सिंगल वॉक डोर. सो जनरली वॉक डोर हम दे देंगे. ठीक है ना, वॉक डोर, सिंगल वॉक डोर है. वी हैव कर्व्ड ईव. सो एज आई एक्सप्लेन यू दैट वी हैव ईव. ठीक है ना, ईव रहता है तो उसमें गटर भी रहता है. बट समटाइम्स क्या रहते हैं, वी हैव लाइक कर्व्ड ईव. यहाँ पे आप अगर देखेंगे, लेट मी शो यू दिस वन. यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको हम ड्रेनेज यहाँ पे नहीं दे रहे, यहाँ पे डायरेक्ट इसको कर्व दे रहे हैं. तो उसको क्या बोलेंगे हम? कर्व ईव. ओके, कर्व. इंडस्ट्रियल लोवर्स. सो वी हैव इंडस्ट्रियल लोवर्स. ठीक है ना, जनरली आप अगर देखेंगे, सो दिस टाइप ऑफ एयर वेंटिलेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं. इसको इंडस्ट्रियल लोवर्स बोलते हैं. ठीक है ना, आप उसको एक बार देखो. ठीक है ना, फॉर वी हैव कॉर्नर ट्रिम्स. जो हमारा शीटिंग होता है ना, वो शीटिंग को हम क्या करते हैं, जब हम शीटिंग लगाने के बाद में उसको हम कॉर्नर पे ऐसा ट्रिम कर देते हैं, ताकि उसका एज जो है कि दिखे नहीं हमको. ठीक है ना, उसको कॉर्नर ट्रिम बोलते हैं. वी हैव ईव ट्रिम.
ठीक है ना, कॉर्नर पे जो ट्रिम है, फिर इफ ट्रिम है, यहाँ पे भी ट्रिम कर देते हैं हम इफ के पास में, उसको इफ ट्रिम बोलते हैं। वी हैव फ्लश फेशिया, वी हैव फ्लश फेशिया, दिस इज कॉल्ड द फ्लश फेशिया, यू कैन सी हियर। ठीक है ना, ये हमारा गेबल है, गेबल को हम क्या कर रहे हैं, फ्लश फेशिया से ढक दे रहे हैं। ठीक है ना, वी हैव फ्लश फेशिया, वी हैव स्ट्रिप स्काईलाइट्स, सो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रिप स्काईलाइट्स। ओके, वी हैव रूफ मॉनिटर, लाइक रूफ में जो आता ना, इसको एक रूफ मॉनिटर बोलते हैं हम जनरली, ये वेंटिलेशन पर्पस के लिए यूज होता है, इसको रूफ मॉनिटर बोलेंगे। उसके बाद हमको हमारे पास डबल वॉक डोर है, मैं यहाँ पे आपको शो किया था डबल वॉक डोर। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड द डबल वॉक डोर। ओके, एंड वी हैव रूफ एक्सटेंशन, रूफ एक्सटेंड करते हैं हम लोग कभी कभी, क्या करते हैं, रूफ को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है ना, अगर हमको चाहिए तो हम रूफ को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारा रूफ है ये। ठीक है ना, इसको रूफ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ पे देख रहे हैं अगर आप तो। ठीक है ना, रूफ को एक्सटेंड कर देंगे, ये हमारा रूफ एक्सटेंशन हो गया। वी हैव रिटन डाउन स्पॉट, रिटन डाउन स्पॉट कहाँ पे यूज होता है जनरली, सपोज दिस इज द बिल्डिंग एंड वी हैव लाइक सम एक्सटेंशन इज देयर, रूफ एक्सटेंशन इज देयर। सो रूफ एक्सटेंशन में क्या करते हैं हम, डाउन स्पॉट को ऐसा करके रिवर्स लेके जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न डाउन स्पॉट बोलते हैं। ठीक है ना, वी हैव ब्रिक वॉल, मैं जैसा एक्सप्लेन किया आपको, सर्टन हाइट तक ब्लॉक वॉल रहते हैं बिल्डिंग में, उसके ऊपर शीटिंग रहते हैं, तो उसको ब्रिक वर्क बोलते हैं। वॉल लाइट्स हो गए, जैसा कि हम रूफ पे स्ट्रिप यूज करते हैं स्काईलाइट्स के लिए, हम वॉल पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, वॉल पे भी हम स्ट्रिप्स यूज कर सकते हैं फॉर वॉल लाइट्स, दिस इज कॉल्ड द वॉल लाइट्स। ओके, वी हैव कर्व्ड कैंटिलीवर फेशिया। ठीक है ना, कर्व्ड कैंटिलीवर फेशिया, एज यू कैन सी हियर, दिस इज कर्व्ड कैंटिलीवर फेशिया। ठीक है ना, थोड़ा सा जो है कि फ्रेम ऐसा एक्सटेंड होके ऐसा आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर फेशिया बोलते हैं। ठीक है ना, ये सब एब्रिविएशन है। अभी हमारा कंपोनेंट्स मोटा मोटा जो भी है थोड़ा बहुत हम एक्सप्लेन कर दिए, बट इन डिटेल वी हैव टू understand. I will provide the PDF, from there you can read all the components of the PEB building. Okay, so some abbreviations we use in the industry, right? So like if you say AB, it is anchor bolts, so we have SC like assembly, we have like all these, please you go through all these things, it will be very useful. Okay, abbreviations. Now coming to the structural systems of the PEB. ठीक है ना, स्ट्रक्चरल सिस्टम हम क्या यूज करेंगे। एक आर्किटेक्ट हमारे पास आया, सपोज कि हमको जो है कि ये स्ट्रक्चर बनाना है, वो अपना आर्किटेक्चरल ड्राइंग दे दिया। ठीक है ना, बट इट इज, अब उसको मालूम नहीं है कि स्ट्रक्चरल सिस्टम क्या यूज करने वाले, तो इट इज क्या है, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज टू ए सफिशिएंट स्ट्रक्चरल सिस्टम। सो सफिशिएंट क्या है, जो कि इकोनॉमिकल हो, ऐसा स्ट्रक्चरल सिस्टम हमको जो है कि सिलेक्ट करना है जो आर्किटेक्ट में अच्छा फिट हो और इकोनॉमिकल हो। सो वी हैव सम ऑप्शंस लाइक क्लियर स्पैन बिल्डिंग। अगर हमारा स्पैन छोटा है, सपोज लाइक 20 मीटर्स, सो हम क्या करेंगे, उसमें हम क्लियर स्पैन दे देंगे 20 मीटर 30 मीटर्स देयर। सो फॉर दैट वी यूज द क्लियर स्पैन स्ट्रक्चर्स। ओके, as you can see here, this is the clear span, we don't have the intermediate column. Okay, here you can see here the clear picture, we don't have the intermediate column. Okay, now coming to the multi-span building. So multi-span 2, what is the multi-span means, like we have intermediate columns. Okay, we have intermediate column, so this is called as the, as you can see here, this is the multi-span 2. We have like, this is our gable frame and we have like 2 intermediate columns are there. We have 1 intermediate column is there. Like this is called as the multi-span. Okay, this is the very important terminology you have to understand. Okay, so this is the 2 intermediate column. We have like 3 intermediate columns. Okay, like we have 3 intermediate columns are there, as you can see here. We have 3 columns. Okay, 3 कॉलम्स हो गए। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्पेस सेवर बिल्डिंग्स है। ठीक है, स्पेस सेवर का मतलब क्या है, लाइक वी आर गेटिंग लाइक मोर स्पेस फॉर आवर बिल्डिंग।
सो ऐसा स्ट्रक्चर भी हम दे सकते हैं, ठीक है ना, एज पर द रिक्वायरमेंट्स वी यूज दैट। ओके, सो लाइक वी हैव लीन टू बिल्डिंग। लीन टू बिल्डिंग में एक्सप्लेन किया था कि एक मेन बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग में जो भी एक बिल्डिंग कनेक्ट हो रहा है उसको हम लीन टू बिल्डिंग बोलेंगे। ओके, like we have other structural system, in the other structural system we have like monoslope building। अभी तो हम जो क्या देख रहे थे like गेबल बिल्डिंग देख रहे थे, बट हमारे पास क्या है, मोनोस्लोप। लाइक स्लोप क्या रहेगा, इसमें एक ही स्लोप पे आता है बिल्डिंग। अभी इसमें क्या है, दो तरफ स्लोप है हमारा, यहाँ इधर भी है इधर भी है। ओके, बट वी कैन यूज द मोनोस्लोप बिल्डिंग एज पर द रिक्वायरमेंट्स। ओके, we like this is the clear spans monoslope building। and coming to the multi gable building, so this is called the gable। ये गेबल हो गया, ठीक है ना, ये गेबल हो गया, ठीक है ना। तो अभी कितना गेबल हो गया, ये गेबल दो गेबल हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टी गेबल बिल्डिंग, ठीक है ना, मल्टी गेबल बिल्डिंग हो गया। लाइक वी हैव रूफ सिस्टम। रूफ सिस्टम क्या है, लाइक हमारा पूरा बिल्डिंग आरसीसी का है, सिर्फ हमको क्या है, रूफ प्रोवाइड करना है स्टील का, तो वी कैन यूज द रूफ सिस्टम बिल्डिंग। ओके, दिस इज द रूफ सिस्टम बिल्डिंग। वी हैव फ्लैट रूफ बिल्डिंग, लाइक दिस इज द फ्लैट, यू नो, दिस डोंट, इट इज नॉट हैव द गेबल, लाइक। तो ये हमारा क्या है, मेजराइन के जैसा हो जाएगा। इसके ऊपर हमारा जॉइस्ट है, फिर जॉइस्ट के ऊपर डेक पैनल के ऊपर रिइंफोर्समेंट, उसके ऊपर फिर स्लैब कास्ट कर देंगे। ओके, एंड वी हैव लाइक लो राइज बिल्डिंग। लो राइज बिल्डिंग भी हम बना सकते हैं इससे, ठीक है ना। उसमें क्या रहेगा, मल्टी लेवल ऑफ मेजनाइन रहेगा। इसको क्या बोलते हैं हम, लेवल्स को मेजनाइन बोलते हैं, ठीक है। लाइक दिस वन, दिस इज द लो राइज बिल्डिंग, मल्टी स्पैन बिल्डिंग, so multi level building। okay, and yes, and coming to the secondary structural system, like our main frame हमारा क्या है, स्टील का है, ठीक है ना, स्टील का है, which is built up section। पीईबी में क्या है, जनरली बिल्ट अप सेक्शन है, बट हमारे पास क्या है, सेकेंडरी सिस्टम भी रहता। जैसा मैं एक्सप्लेन किया कि पर्लिन्स हो गए, गर्ड्स हो गए, तो उसको हम जो है कि जो है कोल्ड फॉर्म, ये भी स्टील है, बट ये दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्टील। ओके, इन द कोल्ड कंडीशन we mold, we can give the shape like Z section, I sections is there। in the cold like state we अपना डिजाइर्ड शेप जो भी है उसको हम मशीन के जरिए हम कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द, इफ आई विल शो यू, ऐसा कॉइल्स रहते हैं जनरली, ठीक है ना, ये कॉइल्स है, ठीक है ना। अभी कॉइल्स को हम जो है कि डिजाइर्ड शेप में हम इसको लाना चाह रहे हैं, पर्लिन बनाना चाह रहे हैं, गर्ड्स बनाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास जो है कि क्या रहते हैं, फैक्ट्रीज में मशीन्स रहते हैं। वो मशीन्स के यूज से हम क्या कर सकते हैं, उसको जो है कि हम वो सेक्शन बना सकते हैं हम जनरली। दिस इज फॉर द पैनल। वो पैनल को कैसा शेप दे रहे हैं हम, जैसा भी शेप चाहिए, ये मशीन है हमारा, ये मशीन में हम डालें तो वो शेप का जो है कि शीटिंग निकल जाता है। सिमिलरली जेड सेक्शन, सी सेक्शन को भी हम वैसा ही कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव लाइक ईव स्ट्रट, दिस इज कॉल्ड द ईव। वी हैव सम स्लोप ओवर हियर, so for the slope of the building we can adjust it। okay, this is the ईव स्ट्रट। and we have mezzanine floor system, as I told you कि हमको जो है कि एक फ्लोर बनाना है तो हम बना सकते हैं पीईबी में, ठीक है ना। वी हैव लाइक मेजनाइन बीम है, जॉइस्ट है, उसके ऊपर फिर हम स्लैब कास्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा स्ट्रक्चरल सिस्टम्स हो गया। तो एज पर द आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट्स वी हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट स्ट्रक्चरल सिस्टम्स टू डिजाइन, ठीक है ना। अगर करेक्ट स्ट्रक्चरल सिस्टम हम नहीं यूज कर रहे हैं तो हमारा बिल्डिंग इकोनॉमिकल डिजाइन नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है कि स्ट्रक्चरल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। Now coming to the design procedure, अभी हम जो है कि मेरा मेन काम क्या है हमारा, इसलिए हम लोग आए यहाँ पे, हमको डिजाइन सीखना है, ठीक है ना। तो डिजाइन को कैसा डीप में हम सीख सकते हैं, उसके लिए सब प्रोसीजर है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे प्रोसीजर अभी बता रहा हूँ, लेटर ऑन आई विल कंटिन्यू इन द लाइव प्रोजेक्ट्स लाइक
some projects we will use, right? So what is the design procedure? We have like, first we have to read the architectural drawings. पहले architectural drawings आपके पास आ जाएंगे, ठीक है ना. architectural drawings पहले क्या होते हैं, कोई भी client है suppose, उसको बिल्डिंग बनाना है तो वो अपना आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनाएगा, ठीक है ना. आर्किटेक्ट को देके, आर्किटेक्ट के बाद में वो पीईबी में आना चाह रहे, अगर पीईबी स्ट्रक्चरल सिस्टम यूज करना चाह रहे तो पीईबी इंडस्ट्री में आएंगे. तो अभी क्या होता है, क्लाइंट जो क्या करते हैं मार्केट में कैसा है बोले तो, क्लाइंट अपना टेंडर डालते, अपना प्रोजेक्ट्स मार्केट में डालते. तो जो भी कंपनीज मार्केट में है वो लोग क्या करते, वो प्रोजेक्ट्स को उठाते, ठीक है ना. उठाने के बाद में क्या करेंगे, वो लोग कोटेशन उसका देते हैं बिल्डिंग का, ठीक है ना. जो है कि क्लाइंट को क्या करेंगे, हम कोटेशन देंगे, लाइक हम आपकी बिल्डिंग इतने लाख में, इतने करोड़ में हम करके दे सकते हैं, ठीक है ना. रफली क्या करते हैं, रफली जो है कि वहाँ पे कोटेशन डिजाइन इंजीनियर रहते, एस्टिमेशन इंजीनियर, ठीक है ना. वो भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर ही रहते, वो उसको क्या है फास्ट जो है कि मोस्ट एक्सपीरियंस्ड रहते, वो लोग फास्टली जो है कि उसको डिजाइन करते. फास्टली डिजाइन करने के बाद में उसका जो है कि कनेक्शन डिजाइन वो लोग परसेंटेज ले लेते, सम थंब रूल्स आर देयर. So they take the like percentages of the connections, like bracings, everything, and they वो जो है कि क्लाइंट को क्या करते हैं, हम कोटेशन दे देते हैं, ठीक है. अभी क्लाइंट क्या है, क्लाइंट जिसका रेट उसको कम लगेगा, ठीक है ना, जिसका रेट कम लगेगा, जो भी कोटेशन कम में करके दे रहा है उसको वो प्रोजेक्ट दे देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना. तो वो कोटेशन जो है कि क्या हो जाएगा, फिर जॉब बुक हो जाएगा. जॉब बुक हो जाएगा, जॉब बुक हो जाने का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट हमारे पास आ गई है कंपनी में. अब इसको हम क्या करेंगे, हमारे पास डिटेल डिजाइन इंजीनियर है. डिटेल डिजाइन इंजीनियर मतलब पूरा एक एक चीज डिजाइन करना है, लाइक फ्रेमिंग सिस्टम करेक्ट है नहीं है, ठीक है ना. मतलब कोटेशन स्टेज में भी सिलेक्ट करते फ्रेमिंग सिस्टम, वहाँ पे जो करेक्ट है नहीं है, अगर करेक्ट है तो प्रोसीड हो जाएंगे, ठीक है ना. उसके बाद फिर जो है कि क्या है, एवरीथिंग जो भी क्वेरीज रहेगी हमारी आर्किटेक्चरल ड्राइंग में, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरएफआई बनाएंगे, ठीक है ना. आरएफआई बनाएंगे, आरएफआई का मतलब ये एक्सेल शीट में हम क्वेरीज जो है कि अपना लिखेंगे, ठीक है ना. वो क्वेरीज लिखने के बाद में हम उसको क्लाइंट को सेंड करते हैं, ठीक है ना. यही हमारी क्वेरीज है, प्लीज क्लियर ऑल दैट क्वेरीज. जब तक हमारा क्वेरीज क्लियर नहीं होगा, वी कैन नॉट प्रोसीड द डिजाइन, ठीक है ना. वी कैन नॉट प्रोसीड द डिजाइन बिकॉज इट विल बी द रीवर्क. इफ यू डिजाइन बिफोर clarifying the queries, it will be the redesign after the queries, because some points may not be after the client reply it not match with your design, like so. पहले हम queries को क्लियर कर लेंगे, क्लियर करने के बाद में हम जो क्या करेंगे, फिर जो है कि डिजाइन में प्रोसीड होंगे, ठीक है ना. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द आर्किटेक्चरल ड्राइंग. अलॉन्ग विद द आर्किटेक्चरल ड्राइंग वी हैव प्रपोजल ड्राइंग. मैं बताया आपको कोटेशन स्टेज में हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चरल सिस्टम, एक जो है कि प्रपोजल ऑफ डिजाइन हम जो है कि क्लाइंट को देते हैं कि सी दिस विल द स्ट्रक्चर इट विल लुक लाइक, यू नो, ऐसा हमारा स्ट्रक्चरल सिस्टम आपका दिखेगा, ठीक है ना. वो प्रपोजल ड्राइंग्स भी हमारे पास आते हैं. तो वो अलॉन्ग विद आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स वी हैव टू लुक द प्रपोजल ड्राइंग, एंड अलॉन्ग विद द प्रपोजल ड्राइंग वी हैव लाइक टेक्निकल ऑफर्स. In the Word file, they give all the information of the buildings. So generally क्या करते हैं, हमारे पास सेल्स इंजीनियर रहते हैं, ठीक है ना. सेल्स इंजीनियर क्या करते हैं, जॉब को बुक मतलब क्लाइंट से डील करते हैं, ठीक है ना. तो वो पूरा इंफॉर्मेशन लेके, पूरा इंफॉर्मेशन बिल्डिंग का लेके किसको देते हैं, हमारा प्रोजेक्ट इंजीनियर को देते हैं. प्रोजेक्ट इंजीनियर का काम क्या है, जो है कि वो एक ऑफर, टेक्निकल ऑफर बनाते हैं, ठीक है ना, जिसमें ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द बिल्डिंग इज गिवन, ठीक है ना. वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमारे पास क्या क्या रहेगा, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आर्किटेक्चरल ड्राइंग है, वी हैव लाइक प्रपोजल ड्राइंग, एंड वी हैव टेक्निकल ऑफर. ये तीन चीजों में हमको देखना है कि एंड एवरीथिंग इज मैचिंग और नॉट, ठीक है ना. एवरीथिंग फ्रॉम द आर्किटेक्चरल, फ्रॉम द प्रपोजल, फ्रॉम द टेक्निकल ऑफर, इट इज मैचिंग और नॉट. सो इफ इट इज मैचिंग, then we can proceed for the design, okay. Now after, so if we got the architectural drawings and the technical offer and proposal drawings, so we have to select the codes. So
the client may give the codes, which codes you have to use for the economical design, or it is mentioned in the technical offer. ये mention रहता है किसमें, technical offer में, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर्स को मेंशन करके हमको देते हैं। तो हमको कोड्स का नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन सा कोड से हम डिज़ाइन करेंगे। लाइक इंडिया में क्या है, फॉर स्टील स्ट्रक्चर वी हैव लाइक 800 IS 800 2007, ओके। फॉर डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स वी हैव लाइक IS 1893 for 2016 for earthquake resistant design of building, and like we have this is for the dead load, we have like IS 875 part 1, we have for the live load we have part 2 875, and for the very important wind load calculations we have like part 3, okay. These are the codes we generally use for the design of the PEB structures. This is the Indian code, and we have also the American codes of design. So for economical design in India also we use American code, okay. So American code में क्या है, बहुत economical design होता है in compare with the Indian codes, ठीक है ना। So we have like AC 716, we have American Society of Civil Engineers, this is and AISI, we have American Iron and Steel Institute. This is for cold form design like purlin, girts, everything. And for built up section, hot wall section, we generally use the AISC, which is American Institute of Steel Construction, ठीक है ना। फिर हमारे पास MBMA है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। हैंडबुक ये हमारा मेटल बिल्डिंग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है, इसमें एवरीथिंग वाट एवर रिक्वायर्ड फॉर द प्री इंजीनियर बिल्डिंग इज मेंशन इन दिस handbook, like so these are the codes. Along with we have like IBC is there, International Building Code is there, we have like UBC is there, okay. And if you are in the Saudi, the Dubai, we have like Saudi Building Code, SPC, we have like Dubai. So these are the codes we use. So we must have the clear knowledge of the codes which we are using, okay. कोड्स हो गए, उसके बाद फिर क्या है, हमको क्या करना है। अब सबसे फर्स्ट तो डिजाइन है हमारा, वो हम क्या करेंगे, दैट इज द सेकेंडरीज, दैट इज द पर्लिन एंड गर्ड्स वी हैव टू डिजाइन फर्स्ट, ठीक है ना। वो क्यों हम डिजाइन करेंगे, बिकॉज फॉर द डिजाइन ऑफ मेन फ्रेम, फॉर द डिजाइन ऑफ मेन फ्रेम वी नीड, हमको क्या चाहिए, हमको पर्लिन और गर्ड्स के बीच में स्पेसिंग कितना है, ठीक है ना। पर्लिन और गर्ड्स के बीच में स्पेसिंग कितना है वो हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। उसका क्या यूजेस है, क्या है ये, दिस इज कॉल्ड द गर्ड स्पेसिंग, लाइक स्पेसिंग बिटवीन दीज टू गर्ड्स इज कॉल्ड द गर्ड स्पेसिंग, एंड द स्पेसिंग बिटवीन द पर्लिन्स वी हैव लाइक पर्लिन स्पेसिंग, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिजाइन द पर्लिन एंड गर्ड्स, ठीक है ना। ठीक है, आपको पर्लिन देखेंगे हम, कंसेप्ट क्या है डिजाइन का, अभी हम डीप में नहीं जा रहे हैं, बट जस्ट जो है कि कंसेप्ट क्या है, ठीक है ना। ये सपोज हमारा लेंथ ऑफ द बिल्डिंग है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ द बिल्डिंग में हमारा क्या है, पर्लिन रन होती, ठीक है ना। ऐसा है थ्रू आउट द लेंथ, इफ यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द लेंथ ऑफ द बिल्डिंग, तो थ्रू आउट द लेंथ हमारा पर्लिन रन होगा। तो पर्लिन क्या है, एज ए कंटिन्यूअस मेंबर, एज ए कंटिन्यूअस मेंबर इट विल एक्ट, ठीक है ना। ये बेंडिंग मोमेंट प्रोफाइल है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको मालूम होगा कि हमारा जो है कि सपोज दिस इज द सब एंड, ठीक है ना, सिंपली सपोर्टेड ओवर हियर। सो तो सिंपली सपोर्टेड में क्या है, बेंडिंग मोमेंट कैसा कितना रहता है, 0 रहता है, आपको मालूम है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमारा सपोर्ट है, यहाँ पे एक फ्रेम है, सपोर्ट मतलब फ्रेम लाइन है। फ्रेम लाइन में क्या है, हमारा मोमेंट क्या रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, मोमेंट इंक्रीज हो गया। सो इन दैट लोकेशन वी प्रोवाइड द लैपिंग, ठीक है ना। ये हमारा पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर है, ठीक है ना। यहाँ पे मोमेंट है, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर तक हम क्या करेंगे, बिल्डिंग पर्लिन को लैप करते, ठीक है ना, सो दैट वी कैन गेट द मोर स्ट्रेंथ ओवर हियर, ओके। So this is called the Perlin and Gat. So we have like continuous member we can design, okay.
सो जनरली पर्लिन एंड गट्स हम किस में डिज़ाइन करेंगे? मैनुअली डिज़ाइन कर सकते हैं, हम एक्सेल बना के रखते हैं, उसमें हम डिज़ाइन करते हैं, और हमारे पास जो है कि एक सॉफ्टवेयर है फॉर हम जो है कि MBS, ठीक है ना? आपको अगर मालूम होगा नेम, MBS इज वेरी यूजफुल सॉफ्टवेयर फॉर डिज़ाइन ऑफ PEB. Everything we can design in the PEB in the MBS. So along with the old forms like Perlin and Guts we can design easily. So अगर हम Perlin and Guts डिज़ाइन हो गया है, उसके बाद हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे. किसका? मेन फ्रेम का एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना? ये हमारा रिजिड फ्रेम है, इसका जो है कि हम एनालिसिस, अब 2D डिज़ाइन भी करते हैं हम. जनरली वी प्रेफर द 2D डिज़ाइन फॉर आवर बिल्डिंग, ठीक है ना? तो एक जो है कि हम क्या करेंगे, एक फ्रेम ले लेंगे. सपोज ये हमारा मल्टीपल फ्रेम्स है, राइट, इंटरमीडिएट फ्रेम्स. तो एक फ्रेम यहाँ से हम उठा लिए, यहाँ से, ठीक है ना? ये फ्रेम ले लिए हम. अब इसके बीच इसका ट्रिब्यूटरी कितना है? ये स्पेसिंग हो गया, ठीक है ना? ये स्पेसिंग हो गया, फ्रेम से फ्रेम के बीच में स्पेसिंग हो गया. तो इसका ट्रिब्यूटरी कितना है? इधर से हाफ, इधर से हाफ, ठीक है ना? ये हाफ लोड जो है कि उसके ऊपर हमारा गिरेगा, ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड एज द मेन फ्रेम. तो अब हम जो है कि उसको मेन फ्रेम को डिज़ाइन करेंगे. तो हमको क्या चाहिए? पूरा इनपुट डाटा चाहिए, ठीक है ना? इनपुट डाटा कहाँ से मिलेगा? हमको जो है कि वर्क टेक्निकल ऑफर से मिलेगा. लाइक व्हाट इज द विड्थ ऑफ द बिल्डिंग, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बिल्डिंग, what is the eave height mentioned, what is the base spacing, okay, like what is the brickwork, up to what height we have block wall and above sheeting, and what is the slope of the building. This is the basic requirements, you know, ठीक है ना? ये आपको चाहिए. उसके बाद फिर क्या है? डिज़ाइंस का आपको जो है कि यहाँ पे मिल जाएगा. लाइक व्हाट इज द डेड लोड. डेड लोड जनरली क्या रहता, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैसा? ठीक है ना? ये हमारा स्ट्रक्चर्स है, उसके हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर जनरली डेड लोड क्या आ सकता, ठीक है ना? सो ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर जनरली हमारा पर्लिन है, उसके ऊपर शीटिंग है, ठीक है ना? तो ये दो लोड्स कैसा कैलकुलेट करेंगे? तो हम पर्लिन को क्या करेंगे? पर्लिन हम डिज़ाइन कर लिए अगर हम, तो पर्लिन का जो है कि टोटल वेट कितना आया पर्लिन का थ्रू आउट द रूफ डिवाइडेड बाय द रूफ एरिया, divided by the roof area. Like suppose we have like, ठीक है ना? ये हमारा जो है कि 5000 आ गया हमारा, ठीक है ना? 5000 kg हमारा पर्लिन का वेट आ गया, डिवाइडेड बाय एरिया हमारा जो है कि लाइक 20/80 हमारा बिल्डिंग है. तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे? हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना kg आ रहे हमारा. जनरली जो है कि हम क्या करते हैं, जनरली जो इसका वेट आता है अराउंड 5 kgs, ठीक है ना? 4 to 5 kgs लाइक दैट इट विल कम, ओके ना? सो 5 kg, सपोज मेरे को 5 kg पर्लिन का वेट आ गया, 5 kg, ठीक है ना? उसके बाद फिर हमारा क्या है? शीटिंग है. शीटिंग को कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमको मालूम है शीटिंग का थिकनेस कितना है, लाइक 0.5 थिक का शीटिंग है, ठीक है ना? 0.5 थिक का शीटिंग है इनटू डेंसिटी ऑफ द स्टील. सो वी कैन कैलकुलेट द शीटिंग का वेट हमारे को आ जाएगा लाइक 0.005 इंटू लाइक 7850 द डेंसिटी ऑफ द स्टील, ठीक है ना? सो वी कैन गेट द शीटिंग वेट, ठीक है ना? तो जनरली 5 kg ऐसा आ जाता है, ठीक है ना? 4 to 5 kg. तो वी कैन एड अप एंड वी कैन गेट अप टू 0.1, ठीक है ना? लाइक 0.1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हम इसको अगर कन्वर्ट करेंगे 10 kg को मीटर में, तो इट विल कम लाइक 0.1 किलो न्यूटन, 0.1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया? डेड लोड्स आ गए. उसके बाद फिर हमारा क्या है? लाइव लोड है. लाइव लोड जनरली क्या है? हमारे स्ट्रक्चर में जो है कि लाइव लोड उतना नहीं आता. क्यों बोले तो एक्सेस नहीं रहता है इसमें रूफ में, ठीक है ना? तो जनरली क्या करते हैं? मेंटेनेंस पर्पस के लिए जो अभी लेबर्स चढ़ेंगे ऊपर शीट को बिठाने के लिए पर्लिन को, तो उसके लिए हम जो है कि लोड कैसा ये कंसिडर करते हैं लाइक 0.57 और लाइक 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना? उसके बाद हमारे को विंड स्पीड चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज वी कैलकुलेट द प्रेशर, विंड प्रेशर फॉर द बिल्डिंग. सो बेसिक विंड स्पीड एज पर द लोकेशन ऑफ द बिल्डिंग हमको
बेसिक विंड मिल जाएगा, उससे हम जो है कि कंप्लीट विंड प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। विंड कैलकुलेशंस बहुत डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं, ठीक है ना। सो we use this basic wind, okay, and the location, okay. After that, after getting all the requirements for the building, we design our buildings like this one. As you can see here, we have like showing moment, how much moment is it is coming. As you can see here it is 387 kilonewton meter, but if you see here, it is only 55.3. So there is no need of that much depth of the steel over here. Like we can reduce the steel depth here, okay, and gradually we can increase. Like here it is, if you see, it is 194 only. So we can you can provide the steel as per the bending moment, okay, as per the bending moment, okay. सो ऐसा आ गया. सो हम डिज़ाइन करने के बाद में हमारे को सी दिस इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट डिज़ाइन पैरामीटर्स. सो हम डिज़ाइन करने के लिए हमको पैरामीटर्स ही चाहिए लाइक व्हाट इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ आवर स्टील, लाइक 490 kilo Newton per mm square we have like ultimate strength. We have yield strength of 345, okay, and we have like Lx, Ly, Lz. Where we will get this one? From the स्पेसिंग ऑफ द पर्लिन एंड गर्ड्स एंड पर्लिन के स्पेसिंग में जितना आया उसको ही हम पैरामीटर्स एज यूज करेंगे. तो इसलिए मैं क्या बोला था, सबसे पहले हम पर्लिन और गर्ड्स डिजाइन करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है कि प्रोसीड करेंगे फ्रेम में, ठीक है ना. प्लॉट इज LZ. LZ क्या है? हमारा मेंबर का लेंथ है. सपोज दिस इज लाइक आफ्टर वी हैव लाइक 15 मीटर. So this is the LZ over here. We can we assign the LZ parameters to our building. I will explain in the detail in the designing of the structures, like in the start. Okay, but for now you just like 1.5 like यहाँ पे पर्लिन कितने स्पेसिंग में आ रहा है, तो ये कॉलम को कितने मीटर पे सपोर्ट मिल रहा है. व्हाट इज द सपोर्टिंग, लाइक इट विल प्रोवाइड द लेटरल सपोर्ट्स to the column and also the rafter if we have purlin over here, right? So it will impact the design, very important, okay, the parameters. And we have like KZ. So KZ is the as per the code the like what is the effective length of the structures, like what is the multiplication factor for the for the members. So it is basically comes from the supports. What is the support condition? Support condition क्या है, उसके हिसाब से हम जो है कि उसको डिसाइड करते हैं. तो अगर हमारा सपोर्ट फिक्स है सपोज, तो वी विल कंसिडर इट एज 1.2, and if we have like pin support, we can consider it as a 1.5 as per our PEB standard, okay, and as per the code. सो अगर आप देखेंगे हम डिज़ाइन करने के बाद में ऐसा हमारा यूटिलिटी रेशियो आ जाते हैं. यूटिलिटी रेशियो क्या है बोलो? यूटिलिटी रेशियो क्या है? एक्चुअल. सो डिज़ाइन क्या है? व्हाट इज डिज़ाइन? सो डिज़ाइन इज एक्चुअल बाय अलाउएबल. अलाउ कितना, एक्चुअल लोड कितना आ रहा हमारे पास, एंड हमको अलाउ जो हम सेक्शन लिए, सपोज हम यहाँ पे बीम सेक्शन लिए, उसका अलाउएबल लोड कितना है, कितना लोड वो बियर कर सकता. सपोज एक आदमी है भाई, उसको जो है कि हम अगर 1000 किलो लोड उसके ऊपर डाल देंगे तो वो कैपेबल ऑफ है क्या उसको बियर करने के लिए? नहीं है. तो हमारा एक्चुअल लोड अगर 1000 है तो इट मस्ट बी लाइक अलाउएबल, इससे ज़्यादा रहना चाहिए, लाइक 1500 लाइक 1100, जितना भी इससे ज़्यादा रहेगा तभी जो है कि यूटिलिटी रेशियो हमारा क्या आएगा, 1 के अंडर आएगा, 1 से कम, ठीक है ना. तो हम जो डिज़ाइन करेंगे स्ट्रक्चर, उसमें हमारा क्या देखना है, यूटिलिटी रेशियो अंडर 1. वी कैन गो अप टू लाइक 0.999, बट इट मस्ट बी अंडर 0.1, ओके. सो दिस इज कॉल्ड द डिज़ाइन. जितना आप ऑप्टिमाइज करेंगे, जितना आपका रेशियो 1 से के करीब रहेगा, उतना आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन इकोनॉमिकल रहेगा, ठीक है ना. अगर यहाँ पे आप देखेंगे रेशियो कितना आ रहा बोलो, 0.47. सो दिस इज नॉट द डिज़ाइन.
दिस इज ओवर डिजाइन, ठीक है ना, दिस इज नॉट द डिजाइन, दिस इज ओवर डिजाइन, ठीक है ना. सो वी कैन गो अप टू लाइक 0.987, it is there, it is good over here, and we have 0.715, ये भी चलता, but this will not the design, this is the over design. So we don't have to go over design and under design, ठीक है ना. हमको जो है कि एक इकोनॉमिकल डिजाइन देना, लाइक 0.99 0.94 ऐसा रेशियोज रहे तो वो इकोनॉमिकल डिजाइन आपका कहलाएगा. ओके, सो दिस विल आई विल एक्सप्लेन one projects and I will show you how to check the utility ratios and how to optimize the building. Okay, this is very important. And coming to the last, we have the connections. This is very important. Like फ्रेम डिजाइन करने के बाद में उसका कनेक्शंस डिजाइन करना है, ठीक है ना. स्टील स्ट्रक्चर में मोस्टली जो है कि मेन इंपॉर्टेंट क्या रहते हैं, कनेक्शंस रहते हैं. अगर कनेक्शंस फेल हो गया बोले तो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाता, ठीक है ना. तो बहुत ध्यान से, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमको कनेक्शंस डिजाइन करने हैं, ठीक है ना. सो फॉर द कनेक्शन डिजाइन वी जनरली यूज द मैनुअल मेथड, वी हैव द एक्सेल्स as well, and we have like softwares. This is called as the Idea Statica software. So this is very popular software we use for the design. So base plate design के लिए क्या करते हैं हम, एंकर बोल्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है ना. So हम इसको डिजाइन कर सकते हैं. What is the vertical loads there, what is the shear is there, ठीक है ना. So for that we design this. Like we have anchor bolt design, we have haunch connection. Haunch किसको बोलते हैं? Suppose this is the rigid frame. One minute. आकाश आपको प्रॉपर नहीं आ रहा है क्लास? There is not proper interaction. I can't say whether internet problem from our side, from your side, or from my side. So remaining people, can you please confirm whether it is the voice is clear and the screen is perfectly visible or not? Yeah, sir, Yes, all everything things is- are clear, Yes, sir. sir, visible. Clear. Yeah. So Vikas, can you please improve your internet connection? crystal clear, sir. Everything is okay. Yes. Okay, please Vikas, you please improve your internet. Suppose it might be like internet problem, I think. Okay. So I was explaining like what is haunch. Haunch क्या है? Suppose this is the rigid frame. So rigid frame में ये हमारा ये राफ्टर को कॉलम से कनेक्शन करते हैं. Like vertical connection is also there. We can provide the horizontal connection as well. So this location is called as the haunch. So वहाँ पे हम haunch को डिजाइन करेंगे. यहाँ पे कनेक्शन आएगा, वो हमको डिजाइन करना है, ठीक है ना. उसके बाद स्प्लाइस कनेक्शन है. स्प्लाइस कनेक्शन किसको बोलते हैं? जनरली क्या होता है, हमारे स्ट्रक्चर्स अगर 12 मीटर से एक्सीड हो रहा हमारा एक मेंबर, क्या मतलब, सपोज ये एक मेंबर है, ठीक है ना. अगर ये मेंबर का लेंथ 12 मीटर से बढ़ गया, ठीक है ना, 12 मीटर से बढ़ गया बोले तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट ट्रांसपोर्ट इट because the shippable length, the maximum shippable length is 12 meter. Why? Because the lorry we have the maximum length of 12 meter, right? So 12 meter से अगर बढ़ गया बोले तो हम we cannot transport it. So what we will do, we'll give the splice, एक splice हम दे देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना. उसमें कोई भी आपका जो है कि प्रॉपर्टीज चेंज होने वाला नहीं है वहाँ पे, सॉरी आपका डिजाइन स्ट्रेंथ कम होने वाला नहीं है. सेम जो है कि स्प्लाइट मोमेंट स्प्लाइस लाइक दिस वन एज यू कैन सी हियर, मोमेंट स्प्लाइस हम दे देंगे, ठीक है ना. सो वी हैव टू डिजाइन द मोमेंट स्प्लाइस. सो वी हैव रिच कनेक्शन. रिच कनेक्शन, रिच में बोला था आपको ये लोकेशन रिच है तो यहाँ पे कनेक्शन कंपलसरी आना है, ठीक है ना. तो ये हमको रिच कनेक्शन प्रोवाइड करना है, ठीक है. एंड वी हैव अदर कनेक्शंस एज वेल. आई विल डिस्कस इन द डिटेल. Okay, so for now just understanding, I'm saying that these are the connections. Okay,
सो कनेक्शन डिजाइन हो गया, तो हमारा बेसिकली डिजाइन हमारा स्ट्रक्चर्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, उसका एस्टिमेशन कर देंगे, ठीक है। एस्टिमेशन करने के बाद में फाइनल एस्टिमेशन जो है कि हम क्लाइंट को भेज देते हैं, ठीक है ना। या अपना जो कि एस्टिमेशन करने के बाद में हम डिजाइन करने के बाद में क्या करेंगे, अपना जो स्ट्रक्चर है वो कैसा, अप्रूवल ड्राइंग्स होते हैं हमारे पास, अप्रूवल ड्राइंग्स बनते हैं। मतलब हम जो भी स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं, हमारे पास ड्राफ्टमैन्स रहते हैं, वो उसको जो है ड्राफ्ट करके जो है कि एग्जैक्ट जो भी हम साइज डिजाइन में लिए हैं, सेम साइज वो ड्राफ्टमैन्स जो है कि डिटेलिंग में डाल के वो अप्रूवल ड्राइंग्स बनाते हैं। वो अप्रूवल ड्राइंग्स में एवरीथिंग रहता है आपका, फ्रेम साइजेस रहते हैं, पर्लिन डेप्थ रहता है, द स्पेसिंग बिटवीन द पर्लिन्स एंड द गर्ड्स, एवरीथिंग। सो वो रहने के बाद में उसको हम क्या करेंगे, क्लाइंट को भेज देंगे फॉर अप्रूवल। लाइक द क्लाइंट विल चेक एवरीथिंग and they will compare with their architectural drawings whether it is okay or not. So after clarifying all the points, they will approve it. So we will get the approval from the clients. So वो क्या करेंगे, वो अप्रूवल ड्राइंग्स हमारे पास टेक्ला की टीम रहती, टेक्ला वाले क्या करेंगे, अप्रूवल ड्राइंग यूज करके उसका कंप्लीट डिटेलिंग बनाएंगे। लाइक उसको 3D मॉडलिंग करेंगे, मॉडलिंग करके बाद में उसका एक एक सेक्शन निकालेंगे, ठीक है ना। हमारे पास क्या रहता है, जनरली फैब्रिकेशन ड्राइंग रहते हैं, जो इंडस्ट्री जो फैक्ट्री में जो जाती है, तो उसमें एग्जैक्ट जो है कि क्या करेंगे, टेक्ला वाले डिटेलिंग करके फैब्रिकेशन ड्राइंग भेजते हैं। फैब्रिकेशन ड्राइंग के हिसाब से फैक्ट्रीज में क्या होते हैं, वहाँ पे एग्जैक्ट साइज में उसको कट करके, उसको वेल्डिंग करके, उसको ग्राइंडिंग करके, उसको पेंटिंग करके, एवरीथिंग दे विल प्रिपेयर एंड दे विल सेंड इट टू द साइट। ओके, वो साइट पे उसको भेज देंगे, ठीक है। ये हमारा प्रोसीजर है, ठीक है ना। और एक चीज क्या बोलना चाह रहा था मैं, इरेक्शन ड्राइंग भी बनाते हैं। इरेक्शन ड्राइंग का क्या मतलब है, लाइक आप जो है साइट में स्किल्ड वर्कर्स नहीं रहते, लाइक उसको पढ़ना लिखना तो आता नहीं है भाई कि वो आपका जो है कि अप्रूवल ड्राइंग जो है कि डिटेल ड्राइंग पढ़ के वो इरेक्ट कर दे, नहीं। वहाँ पे क्या करते हैं, हम पार्ट मार्क दे देते हैं। लाइक हमारा दिस इज कॉलम है, कॉलम दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 मेंबर, दिस इज 4। लाइक नहीं, आप पजल खेले होंगे, उसमें आपको कैसा रहता है, ये कोई भी चीज रहता है कंपनी की तरफ से आते, उसके अंदर एक मैनुअल रहता है कि इसको कैसा कनेक्ट करना। तो उसमें जो है कि पार्ट मार्क्स रहते हैं, नंबरिंग सिस्टम रहते हैं कि उसको आप कनेक्ट करके उसको जो है कि आप बना सकते हैं। सेम इन द इंडस्ट्री, we give the part marks to our structure and we will send it to the site. They see the numbering only, like this is the number 1, this is number 2, just they connect it by the bolt connection. Okay, this is called as the erection drawing. Okay, ये तो हमारा complete PEB का एक इंट्रोडक्शन हो गया आपके लिए, ठीक है ना। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है कि आ गया होगा। अब क्या है, इरेक्शन प्रोसीजर भी हम समझ लेते हैं, ठीक है ना, कि साइट में कैसा इरेक्शन होता है। तो जब हमको है कि जो भी हम डॉक्यूमेंट्स है वो हम भेज देंगे साइट पे लाइक एंकर बोल्ट, शीटिंग प्लान भेज देंगे, क्रॉस सेक्शन जो भी रहता है पार्ट मार्क्स के साथ भेज देंगे, रूफ फ्रेमिंग प्लान भेज देंगे, रूफ शीटिंग फ्रेमिंग भेज देंगे, साइड वॉल शीटिंग फ्रेम एंड अदर ड्राइंग्स वी सेंड इट टू द साइट। एंड साइट में क्या है, साइट इंजीनियर्स रहते, वो लोग उसको देख के क्या करते, बिल ऑफ मटेरियल्स जो भी है वो बनाते। उसके बाद फिर प्रिपरेशन ऑफ इरेक्शन वो लोग करते। उसमें क्या है, प्री इरेक्शन चेक्स करते, लाइक वेदर एवरीथिंग्स आर ready or not, every document is completed or not. So if the receiving material at site is completely or complete or not, so they check it and they unload from the containers, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इरेक्शन ऑफ द फ्रेमिंग होता, ठीक है ना। पहले प्रिपरेशन ऑफ द फर्स्ट वे, ठीक है ना। हमारा फर्स्ट वे पहले फर्स्ट वे जो है कि हम इरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है, हमारा फर्स्ट वे इरेक्ट होने के बाद में हमारा मेन फ्रेम्स, उसके बाद मेजोनाइल फ्लोर्स, क्रेन्स, लाइक दिस आर द स्टेप्स ऑफ इरेक्शन। सो उसके बाद फिर उसके ऊपर हम शीटिंग लगा देंगे। शीटिंग प्रिपरेशन होता है, शीटिंग द वॉल, शीटिंग द रूफ्स एंड वी हैव लाइक मिसलेनियस ट्रिमिंग्स देयर, लाइक, ठीक है ना। उसके बाद फेशिया है अगर, तो फेशिया को भी हम प्रोवाइड करके उसको शीटिंग दे देते हैं। तो these are the erection procedure. As you can see over here, the clear picture of this is the pedestal over here, and we have like anchor bolts as you can see. So anchor bolt में क्या करेंगे, जो ये इंजीनियर है, ये लेबर है,
ये इसको क्रेन की मदद से एग्जैक्ट वो लोकेशन पे जाके फिट कर देते हैं, ठीक है ना, एग्जैक्ट लोकेशन पे फिक्स कर देंगे। तो ये जो है कि हमारा इरेक्शन प्रोसीजर हो गया। एंड वी हैव लाइक कंक्लूजन। Obviously, the PAV structures are easy to design than conventional steel building, as explained you. The PAV structures are more reliable than CSB, conventional steel building. Obviously, we have like PAV structure are more advantages than CBS structure in terms of cost effectiveness. So this is the main important. The main concern from the client is the cost. Okay. So cost effectiveness is there, quality controls are there, we have like speed construction is there, and simplicity in the erection is there. Okay. So PV building cost is 30% lesser than the cost of CSB. कितना है कॉस्ट, कितना सेव कर सकते बोलो हम, 30% सेव कर सकते, ठीक है। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट, this is the main जो है कि advantages than the conventional steel building. Okay, the PAV roof structure is almost 15 to 20% lighter than the conventional steel building. कितना हम लाइटर दे रहे हैं, 15 to 20% लाइटर है, ठीक है ना। PAV कंस्ट्रक्शन इज 30 to 40% फास्टर। कंस्ट्रक्शन फास्टर है बोले तो लेबर कॉस्ट बचता, लेबर कॉस्ट बचेगा तो प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑब्वियसली कम हो जाएगा। ओके। And we have PAV offers low cost, strength, durability, design flexibility, adaptability and recyclability. So इसको हम PAV स्ट्रक्चर क्या करेंगे, रिसाइकल भी कर सकते हैं। अगर हमारे को एक जगह से दूसरे रिलोकेट करना है तो रिलोकेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। So therefore a pre-engineered building is preferable to a conventional steel building. So these our introduction. So hope you people understand. Okay. Yes, sir. Okay. Thank you. And now we can conclude. And Akash sir, can we proceed with like question answer session? यस परफेक्ट। एक्चुअली गैस कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी सॉरी। तो बहुत अच्छा था, मैं खुद बहुत देर तक सुनने लगा था बहुत दिन बाद, तो आई वाज लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा। गैस आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे तो बहुत सी चीज़ें मतलब सुनने को लगा, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, कल से आपकी जो क्लासेस होंगी वो स्किल्स गुरुकुल वेबसाइट पर चलेंगी। तो सर आप, क्योंकि कैसा होता है यहाँ पर बीच बीच में कोई आएगा तो डिस्टर्ब होगा क्लास, तो वहाँ पर क्या होगा, आप आते रहेंगे, क्लास चलती रहेगी। तो स्किल्स गुरुकुल वेबसाइट पर चलेगी क्लास, उस पर कैसे रजिस्टर्ड करना है उसका एक वीडियो प्लस लिंक दोनों मिल जाएगा। सर क्लास से 5 मिनट पहले जैसे आज लिंक शेयर किए थे वैसे लिंक शेयर कर देंगे, कल से आप वहाँ से क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। दिस वाज द इंट्रोडक्शन। सोचिए इंट्रोडक्शन इतना अच्छा है तो आगे क्लास कितनी बेहतरीन होगी। यू कैन गेट द आइडियाज़, ठीक है। आप लोग कंजूसी कर रहे हो, चैट बॉक्स में आप अपना कॉम्प्लीमेंट भेज सकते हो अगर आपको अच्छा लगा हो तो। एंड क्या बोलते हैं, आप किसी को क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हो, सर से अपना कोई क्वेश्चन पूछ लो आप लोग। अदरवाइज आई थिंक सब कुछ तो क्लियर कर दिया सर ने। क्वेश्चन वही यही इस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, फ्यूचर से रिलेटेड नहीं, प्लीज़ ये ध्यान देना। कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आपको भी यही चीज़ बोलेंगे कि जो लोग प्रैक्टिस करके नहीं आएंगे, मन से क्वेश्चन पूछेंगे तो उनको आंसर मत करिएगा। ओके सर, ओके। क्योंकि क्या होता है, मन से तो हम बहुत कुछ पूछ सकते हैं ना, जो मेहनत करेंगे उनके प्रोजेक्ट पर वो अपना डिस्कस कर सकते हैं। आज की क्लास से रिलेटेड किसी कुछ पूछना है तो पूछिए, अब फ्यूचर मत पूछिएगा, फ्यूचर की क्लास में, क्योंकि फिर फ्यूचर का लंबा चला जाएगा। नाउ बासी, यू वांट टू आस्क समथिंग रिलेटेड टू टुडे क्लास, तो कैन आस्क। यस सर। सर लास्ट टाइम सर ने ये बताया कि मिसलेनियस, तो सर वो क्या है सर जी? मिसलेनियस क्या है, पूरा बोलिए मेरे को। सर वो बताए थे आपने, यही वाला नहीं, एक मिनट ना, थोड़ा सा एक बार और पीछे सर, और इसके और पहले। इनको मिसलेनियस का मतलब नहीं पता है। हाँ, नो, एक मिनट। मिसलेनियस स्ट्रीम्स, हाँ सर ये वाला, हाँ मैं आपको एक्सप्लेन हाँ सर यही वाला, एक मिनट मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जो भी हमारा शीटिंग रहता है ना बिल्डिंग में, सपोज इफ यू सी यस सर,
ये शीटिंग है सपोज, ठीक है ना, शीटिंग ऐसा आ रही है, फिर यहाँ से भी एक शीटिंग हमको लगाना है, ठीक है ना। अब ये दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बोलो, आ जाएगा, ठीक है ना। Yes, sir, yes, उसको sir. हम उसको क्या करेंगे, एक एडिशनल शीट लेके, एज यू कैन सी हियर इन द व्हाइट, यू कैन सी हियर व्हाइट में दिख रहा है आपको, दो शीट को कनेक्ट करके उसको क्या करें, ढक दिए, बस उसको ट्रिम बोलते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है ना, ताकि उसका एजेस जो है कि वो सर। दिखाई ना दो। हाँ बोलो। सर जहाँ पे मिसलेनियस वाला दिखा रहे पार्ट, वहाँ पे एक बार अपना सर्कल ले जाए ना सर, कहाँ पे बोल रहे हैं, समझ नहीं पाया, एक बार रिपीट कर देंगे। यहाँ पे अच्छा दिख ये रहा है। वाला सर, उसको कैप बोलते हैं कि सर जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो शीट रहती है उसको कैप करने के लिए कैप बोलते हैं ना, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में मिसलेनियस। हाँ, ट्रिम्स बोलते हैं उसको, ट्रिम्स कर देते हैं, मतलब जनरली हम क्या करते हैं, ट्रिम कर देते हैं। Yes. ईव में भी आएगा, या यस सर, यस सर। यहाँ पे जो भी पिक्चर है उसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एवरी लोकेशन में लाइक ईव में आपको आ जाएगा, ईव ट्रिम हो जाएगा, ठीक है ना, आपको गेबल ट्रिम हो जाएगा, ठीक है ना, वो टर्मिनोलॉजी है। उसको जनरल ट्रिम का मतलब ये समझ लो कि जो है कि दो शीटिंग आ रही, कनेक्ट हो रही, उसको हम जो है कि एक एडिशनल शीट से उसको ट्रिम कर देते हैं। ओके, ओपन द क्वेश्चन। ओके 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 सर। सर एक और सर, जी, एक और Yes. क्वेश्चन है सर। ओके। सर वर्टिकल ब्रेसिंग में और हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग में क्या डिफरेंस है सर जी? वर्टिकल ब्रेसिंग कहाँ आता है, बोलो। सर वो कॉलम टू कॉलम में आता है, और हॉरिजॉन्टल जो रहता है राफ्टर टू राफ्टर आता है। हाँ, तो इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हम क्या करेंगे, वर्टिकल हमारा हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग यूज करते हैं, ठीक है ना। जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस में जो लोड आ रहा है, मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको, सपोज दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, राइट। सो ये डायरेक्शन में जो भी लोड आ रहा है उसको रेजिस्ट करने के लिए हम ये ब्रेसिंग दे रहे हैं, क्रॉस ब्रेसिंग इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ओके, हेलो, समझ में आया? यस सर, यस सर। हाँ, चेतन So आप भी this अपना is- क्वेश्चन पूछ लीजिए। चेतन, यू कैन फिनिश योर क्वेश्चंस सो दैट कि हम लोग क्लास कवर कर दें। सर आप एक्सप्लेन करने का टाइम पिन कनेक्शन करके बोला ना सर, वो उसके बारे में थोड़ा हाँ, What? मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखो हमारा, यहाँ पे देख लो आप, ये हमारा कॉलम है, ठीक है ना, कॉलम है। तो जनरली सपोर्ट जो है कि हमारा दो टाइप का सपोर्ट है। एक होता है हमारा फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट का मतलब है एवरीथिंग इज रेस्ट्रेंट, लाइक मूवमेंट, ठीक है ना, एवरीथिंग इज रेस्ट्रेंट।